you can able to view my screen clearly now. So now you can able to view my screen clearly now. Yeah. Okay. So this is the topic what we're gonna discuss today is sequence. Okay, what will exactly happen in the sequence we'll discuss now. One second, let me open the basic chart, whatever the chart we have completed now. Okay, let me go at the bottom here. Okay, sequences is also one of the database object. Okay, which we are discussing now. What will happen in the sequence is automatically the value get added. I think you don't have to put ID number equal to 1. Once you put you will give the maximum value automatically. You don't have to give the value again. Okay, like example, like a table name, I will create like a table name. With that one, like they are like a two values in the table, ID and like a first name. Okay, so you are giving the value maximum value as 5, for example, in the sequence. Suppose if you give a maximum value of 5 in the sequence, for example, uh, I'm telling ID value maximum if you give 5, then 5 people only you can add, and that ID number will be automatically will be done. You don't have to put ID number insert into ID number value 5. Automatically that value will take. How it will take that value? I will show you practically. Okay, but there is syntax of sequence. What is the syntax of sequence? I will show you now. Create. This is like a syntax. Okay, one second. Then based upon syntax, we'll do the practical of sequences. Okay. Okay, this is the sequence. Create sequence, like how we create the synonym, right? Similar way, sequence. Then we have to give like a name. Okay, then we have to give like a name. Okay, then after this name, then we have to start the value. Okay, suppose for example, if I want to start the value with 1. Okay, start value. This is the syntax. Okay, Mm. start with 1. Okay, or else if I want to increment the value, okay, increment the value by 1. Okay, one second, increment the value by 1. This is like a syntax what we will use now. Okay, Mm. this is the syntax which we will use when we try to create the sequences. Okay, let me go here at the more bottom, and now maximum value. How much maximum value you have to give? For example, I'm giving the maximum value as 10 or 5, whatever I want. Suppose if I want to give the maximum value as 10, for example. Okay, Increment. हाँ इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली Yeah. इंक्रीमेंट हो जाता. अगर आप नहीं, वैल्यू 7 दिए 7 टाइम्स इंक्रीमेंट होता, 10 दिए 10 टाइम मतलब इंक्रीमेंट हो जाता. ओके, वी डोंट हैव टू इंक्रीमेंट डू इट के अगेन एंड अगेन. स्पेलिंग वाला होता है, CRE है. ओके, CRE. ओके, इंक्रीमेंट. हाँ. CRE. ओके, इंक्रीमेंट. CRE इंक्रीमेंट बाय 1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, मैक्सिमम वैल्यू मार के स्पेस 5 डबल कोलन. ओके, तो क्या होता, सीक्वेंस आपका क्रिएट हो जाता. जैसे कि सीक्वेंस क्रिएट होता था, लेट्स सी द प्रैक्टिकल, तो अपने को क्लियर आइडिया हो जाता कि हाउ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. इसके अंदर हाँ. दो मेथड रहते हैं, करंट वैल्यू और क्या बोलते हैं नेक्स्ट वैल्यू. ओके, ये अपने को डालना पड़ता अपने टेबल में. एक ही बार इंसर्ट करते वक्त वैल्यू डाल देना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू लेते रहता. अब वो कैसा रहता वैल्यू विल सी शो यू प्रैक्टिकली इन डिटेल. नाउ लेट्स जस्ट गो टू द टेबल. ओके, CMD command prompt. Is the video is getting recording now? Yeah. Yes, the video is getting recorded. Okay, now let's just create the sequence now, but before in that command, okay, SQL plus slash no log. Okay, connect sys as sys dba. Okay, ये तो कनेक्ट हो गया ऑलरेडी. ओके, दिस गॉट ऑलरेडी कनेक्टेड. ओके, अब जैसे कि ये कनेक्ट हो गया, देन व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू हियर नाउ, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट. ओके, क्रिएट चलो. अब सबसे पहले अपन क्या करें, शो यूजर मार के देख लिए कि भाई ओके एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, आर वी इनटू द यूजर नॉट. ओके फाइन, वी आर नॉट दिस यूजर. अब इसमें क्या करें, टेबल क्रिएट करें. क्रिएट, अपन एक टेबल क्रिएट करें जिसको आप बोलते हैं सेम सिंटैक्स से फार्म, मतलब उससे पहले अपने को क्या करना है, सीक्वेंस से क्रिएट करना है. ओके, सेम सिंटैक्स को लेके सीक्वेंस से क्रिएट करेंगे अपन. SEQUENCE. अब इसका एक नाम दे देंगे, एक सीक्वेंस जो भी अपन क्रिएट करें. फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे रहा हूँ S1 बोल के, मैं एक नाम दे रहा हूँ, समझो किसका, सीक्वेंस का नाम दे रहा हूँ मैं एक S1. यानी तो मैं क्या करता हूँ, मुझे MUJ1 बोल के भी मैं दे देता हूँ. ओके, MUJ1 बोल के सीक्वेंस का मैं एक नाम दे दिया फॉर एग्जांपल. ओके, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, चाहे मैं M1 भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ. ओके, अब मैं यहाँ पे एंटर मारा. ओके,
स्टार्ट मार के अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बोला ना सबसे सेकंड वाला काम क्या है, अपने को स्टार्ट करना है। स्टार्ट विद बोल के फॉर एग्जांपल मैं 1 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सीक्वेंस के ऑर्डर को, 1 से लेके अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इंक्रीमेंट वैल्यू 10 तक करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 100 भी कर सकते हैं, जब तक इंक्रीमेंट हुआ जब तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 7 तक करना चाह रहा हूँ, तो 7 के बाद अगर मैं वैल्यू इंसर्ट करने गया तो उन्हें नहीं लेता वो वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये स्टार्ट विद वैल्यू 1, ठीक है, उसके बाद मैं क्या इंक्रीमेंट, INE इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट बाई, इसके बाद में क्या करा, वैल्यू बाई 1 बोल के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एक एक वैल्यू इंक्रीज होना, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट बाई 2 बोले तो 1 के बाद 3 आता, 3 के बाद 5 आता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। कहाँ तक इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक मैं इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं जो है 7 तक इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 7 बोल के मार के मैं यहाँ पे डबल कॉलन मार के जस्ट क्लिक इट लाइक दिस एंड देन एंटर, सीक्वेंस क्रिएटेड। अब ये सीक्वेंस क्या हो गया, 7 टाइम्स ऑलरेडी क्रिएट हो गया। अब जैसे कि ये क्रिएट हो, अब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल का नाम क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल MUJ फॉर एग्जाम्पल 550 बोल के मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, मुजाहिद भाई टेबल बोल के, ओके। अब यहाँ पे मैं ऐसा करके यहाँ तक आ गया, उसके बाद SNO, अब मैं अब एक नंबर लिया समझो, फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर, या ID बोल सकते हैं आप, या सीरियल नंबर बोल सकते हैं आप, मैं एक नंबर लिया, ओके। नंबर लेके यहाँ पे नंबर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 बोल के डाल दिया, ये एक नंबर में क्रिएट करा, ठीक है। उसके बाद क्या करा, एस नेम मतलब क्या है, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये ले लेके क्या करा, यहाँ पे वैर कैर डाल के 2 कॉलन डाल के 10 डाला, ठीक है, डाल देके ये ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम बोल के ब्रैकेट को मार देके ऐसा क्लोज कर दिया, टेबल का ऑलरेडी ये क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अब जैसे कि टेबल क्रिएट हुआ, अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, इसके अंदर 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक का नाम आप जिसको बोलते हैं कर्वेल और नेक्स्ट वैल। कर्वेल वो तो करंट वैल्यू, ओके, इसके अंदर 2 चीज का इस्तेमाल होगा जिसको आप बोलते हैं कर्वेल। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आप जैसे कि टेबल क्रिएट करते हैं, इसमें 2 मेथड्स रहते हैं, CUR कर्वेल, कर्वेल मतलब आपकी करंट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू बोले तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब ये मेथड का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं, नेक्स्ट वैल्यू बोले तो क्या है, आपकी नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जस्ट सिंपली पुटिंग है नेक्स्ट वैल्यू, ओके, 1 सेकेंड, नेक्स्ट वैल्यू, ओके। नाउ अब कार्वेल फिनिश, नेक्स्ट वेल फिनिश, नाउ आई एम एंटरिंग द वैल्यू। अब इसको कैसा कॉल करते वो तो आप जो भी नाम दिए ना, आप जब सीक्वेंस क्रिएट करे थे तो आपका नाम क्या दिए थे, आप M1 दिए थे ना आपका नाम, तो इसको कैसा लिखना वालों, M1 डॉट कॉलवेल बोल के लिखना मेथड। अगर आपको टेबल में इंसर्ट करना है तो वैल्यूज, अगर आप इसको नेक्स्ट वैल्यू अगर आपको होने का है तो समझो M1 दिए ना आप, आपका सीक्वेंस का नाम M1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू बोल के देना है। अब मैं क्या करना था, तो वैल्यूज को इंसर्ट कर, टेबल तो ऑलरेडी अपना क्रिएट हो गया, ये तो समझ में आ गया ना आपको, अपन वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं। अब जब वैल्यूज को अपन इंसर्ट करने जाए, व्हेन वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट द वैल्यू, ओके, इंसर्ट इनटू, अब इसमें क्या करें अपन, MUJ बोल के अपना टेबल का नाम क्या है, 550 है ना, ओके, 550 टेबल के अंदर गए, इसके अंदर क्या करें, जाके वैल्यूज करें, ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यूज। अब ये वैल्यूज के अंदर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो आप इसके अंदर वेरी वेरी सिंपल, अभी जो SNO दिख रहा आपको यहाँ पे, SNO नंबर दिखा ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 7 टाइम्स नंबर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। कैसा करता हूँ मैं, आपके सीक्वेंस का नाम क्या है, आपके सीक्वेंस का नाम है M1, ठीक है, M1 है ना आपके सीक्वेंस का नाम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, M1 डॉट नेक्स्ट वैल, NEXTVAL नेक्स्ट वैल, ठीक है, 1 सेकेंड, ये हो गया आपका नेक्स्ट वैल, ओके। M1 डॉट नेक्स्ट वैल मारा, उसके बाद में यहाँ पे कामा मारा, कामा मार के क्या करा मैं, आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम्परसेंड मार के, अपने को नहीं मालूम कौन सा नेम लेना है, राइट, अपने को कौन सा नेम लेना है अपने को नहीं मालूम है, तो मैं क्या करूँ, अपन क्या वैल्यू लिए थे, अपन S नेम लिए थे ना अपन वैल्यू इसकी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे S नेम ले रहा हूँ, ऑटोमेटिकली उन्हें वैल्यू ले लेना, अपने को लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली उन्हें वैल्यू ले लेना। अब ये हो गया क्लोज, ठीक है, M1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू और दिस वन, ये दो, खाली में से उन्हें क्या नहीं पूछ रहा मेरे से, उन्हें ID पूछ रहा है, खाली नाम डालो बोल रहा मेरे को, ID कहाँ पूछ रहा मेरे से, उन्हें नहीं पूछ रहा, ID तो उन्हें ऑटोमेटिकली ले लेता 7 नंबरों तक, अच्छा, ये 7 नंबर तक वैल्यू इन्हें ऑटोमेटिकली ले लेता, अपने को लेने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे मारा मिसाल के तौर पे जीशान बोल के मारा,
स्लैश मारा, फिर स्लैश, फिर से एक स्लैश मारा, फिर उसके बाद मुजाहिद भाई बोल के मारा, मुजाहिद हाँ भाई बोल के मैं यहाँ पे मारा फॉर एग्जाम्पल। फिर ओके, फॉर सीधा ये एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 हो जाते हैं वहां पे। ऑटोमेटिकली ले लेता, 60 हाँ टाइम तक ऑटोमेटिकली लेता उन्हें आपको लेने, क्योंकि आप सीक्वेंस क्रिएट कर दिया ना एक बार। हाँ हाँ। हम्म। और इसका तो फायदा तो यही है ना, ऑटोमेटिकली हाँ। ले लिया। अब स्लैश जाके मैं यहाँ पे खाली आमिर मार रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे हालांकि 1 2 3 वैल्यू इंसर्ट भी नहीं कर रहा, मेरे को करने की हाँ जरूरत नहीं, इससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम सेव हो जा रहा ना भाई। हाँ सही। हम्म। अब हर एम्प्लॉय का आईडी आपको डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का आईडी खुद ब खुद ही ले ले रहा हूँ इंटरनल। हाँ। हम्म। अब मैं यहाँ पे आमिर मारा, मारते कि मेरे को आ गया। अब मैं यहाँ पे आसिफ मारा, मेरे को यहाँ पे आसिफ आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके SHABAN शाबान मारा, मेरे को ऑटोमेटिकली शाबान आ गया। अब हम्म। मेरे को जब तक आएगा 7 वैल्यू, जब तक क्रिएट नहीं हुए, जब तक मेरे को वैल्यू आती जाएंगी वो। हाँ। समझ में आ हम्म। रहा आपको? हाँ। अब मैं अभी एक स्लैश मारता हूँ, देखो स्लैश मार के 7 वैल्यूज तक ले रहा हूँ, उसके बाद नहीं लेता उन्हें, हम्म। फुल हो गया हाँ। कैपेसिटी बोलता। ठीक है, अच्छा। अब मैं इसके बाद फॉर एग्जाम्पल कोसा भी नाम लेते ही जा रहा हूँ मैं। ओके, हम्म। स्लैश मारा, अब मैं इसे मारा यहाँ पे जैक, क्या बोला हाँ। M1 exceed the maximum value cannot be हाँ initiated। समझ में आ हाँ रहा है ना? हाँ। अब क्या कर रहा हूँ देखो, अब मैं सेलेक्ट आर फ्रॉम, भाई अपने टेबल का नाम क्या था? M1। MUJ था, नहीं था, एक मिनट देखेंगे अपने हाँ टेबल का MUJ नाम। 550। MUJ 550 था ना अपने टेबल का हाँ नाम? हाँ हाँ। चलो अपने टेबल का नाम MUJ 550, ये अपने टेबल का नाम था। ठीक है, हम्म। मैं करा ऐसा, भाई आप तो डाले ही नहीं, आप तो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली क्रिएटेड कहाँ से हो गया, देखो ये। हाँ समझ में आ रहा है आपको? ये है बिल्कुल। हाँ। आपका एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, जिसको आप बोलते हैं सीक्वेंस। हम्म। ठीक है, ये सीक्वेंस में खत्म करा। ठीक है, ये अब वेरी सीक्वेंस में अपन 500 1000 तक भी दे सकते। कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी अच्छा। की वैल्यू, अच्छा। आपकी मर्जी की वैल्यू, आप जितनी हाँ वैल्यू देना चाहे आप उतनी वैल्यू आप दे दे सकते हैं, आपकी मर्जी। लिमिट नहीं है उसमें कुछ। लिमिट कुछ भी नहीं है उसकी, लिमिट ओ। कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक डाटा, देखो भाई आपका व्यूज, आपका क्या हो गया, व्यूज खत्म हो गया। ठीक है, हाँ अब अपन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन करने वाले हैं, इसके हाँ। अंदर एक सब क्यूरीज बोल के टॉपिक है, अच्छा। जो कि इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है वो, अगर आप डाटाबेस एनालिस्ट को अप्लाई करें। सब हम्म। क्यूरीज यानी तो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज बोलते हैं उसको। अच्छा। वो टॉपिक अब अपन करने वाले हैं, अगर आप ये टॉपिक के साथ अगर वो टॉपिक कर लिए, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ए डाटाबेस एनालिस्ट। हम्म। को आप बोलते हैं सब क्यूरीज, क्योंकि आप लोगों का 3 प्रोफाइल बनाने वाला हूं मैं, एक हम्म। का, एक SQL का, एक इसका। ओके, सब क्यूरीज, डाटा, सब क्यूरीज और कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, हम्म। कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। ओके, अब इसमें है सब क्यूरीज में कितने टाइप के सब क्यूरीज है मालूम? देर हम्म। आर क्या बोलते हैं, हमारे 5 टाइप्स ऑफ सब क्यूरीज है। एक अच्छा। सिंगल रो सब क्यूरी है, हम्म। सेकेंड क्या है, मल्टी रो सब क्यूरीज है। हम्म। ये इस बात से नहीं दिखाया मैं आपको, ये लास्ट टॉपिक है आपके SQL की, इंडेक्सेस और जॉइन से पहले, क्योंकि आपका ये अच्छा। कांस्टेंट भी खत्म हो गया ना ये पूरा। ये हाँ SQL का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन PL SQL में जाएंगे। PL SQL इस बात से कराना जरूरी है आपको, क्योंकि अब अपन जब PT पार्ट में जब टेस्टिंग करेंगे ना, जब हाँ। ऐसा नहीं होना बोल के, यहाँ तक अपन क्या है VA के लिए एलिजिबल हो गए समझो, इतना जितना भी करें ना अपन अभी यहाँ तक टुडे, हाँ हाँ। ये आपके VA के लिए ओके है। अच्छा। लेकिन PT के लिए तो एडवांस करना पड़ेगा ना अपने को, वो जो कि अपन अब हाँ। करने वाले हैं, सिंगल और हम्म। सब क्यूरी, मल्टी रो सब क्यूरी, को रिलेटेड। इसको नेक्स्ट वाला क्या है बोले तो, ये पूरे क्या रहते हैं, कॉम्प्लेक्स को रिलेटेड सब क्यूरीज। ठीक है, सब क्यूरीज। ठीक है, नंबर 4th वाला क्या है बोले तो, इनलाइन व्यूज। हम्म। नंबर 5th वाला क्या है बोले तो, स्केलार सब क्यूरीज, स्केलार सब क्यूरीज। चलो अपन पूरे एग्जांपल अपने बैक टू द टेबल से करेंगे। अपन जो टेबल क्रिएट करे थे ना पहले, हाँ। कोसा करे थे अपन टेबल, जूल टेबल से पूरे करेंगे, क्योंकि हम्म। एक टेबल में पूरा करें तो अपने को पूरा रहता ना भाई।